on a very important scheme that NCC is starting for this Republic Day parade. Thank you very much. We have with us Honorable Defence Secretary Dr. Ajay Kumar, Director General NCC, Lieutenant General Tarun Kumar H, Aviation, and other colleagues from the Ministry of Defence and the NCC. So we will begin this press conference. Of course, this is on the record press conference, and this is about NCC. I would now request Defence Secretary sir to make the opening remarks. NCC has been receiving a great amount of importance by the government. Honorable Prime Minister had last year on August 15th announced from Red Fort about expansion of NCC in border areas. Our Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has been giving a lot of focus and had been associated with large number of activities, including launch of new mobile training app last year and several other activities, as you must have been seeing them also in the media. Today, in that series of new initiatives which NCC has taken, a major new initiative that is being taken, we are going to talk, and this is for the Republic Day camp, which is the flagship event of NCC. This event, in the Republic Day camp, we used to have cadets from foreign countries. This practice started nearly 50 years back in 69-70. But our normal practice was that we would ask the host, the foreign country, to send the cadets to participate for the camp. The number of countries typically started from 2, 3, went up to 10. Now we were inviting 10 countries every camp. But the cadets was being selected by the sending country. For the first time, we are making participation in Republic Day camp for the youth and cadets of foreign countries aspirational. As part of this scheme, we are working with Indian embassies in these foreign countries. We are publicizing the kind of exposure and activities this Republic Day camp provides. And we will be selecting these cadets and youth based on a competitive process. The selection would be based on various subjects related to India, its history, culture, area, economy, growth, etc. By making this aspirational, it would also result in large number of youth in other countries, one, aspire to come, and second, be more aware about the progress of new India that is happening. In this regard, Ministry has approved a proposal and has ramped up this year, being the 75th year. Republic Day will be in the 75th year of independence. Our participation is being ramped up from 10 countries to 25 countries, the list of which is in the press release that we are sharing. Importantly, these countries will represent all the habited continents of the world. So we will have
representation from all the continents. The information to the various countries regarding what the selection procedure etc. will take place in the month of July. Selection process, which will be largely online, will take place in the month of September, and by October the results will be announced, and thereafter the youth and cadets will have time to prepare to come and participate in the camp. It goes without saying that, like last year, the camp will be conducted with full COVID protocols, and NCC had demonstrated last year that the camp could be conducted with by creating a bio bubble and other precautions, so that there was no case of COVID taking place. This is a new role in which NCC is not only today as a great as an organization which creates molds the personality and character of youth in India, but is also becoming an ambassador to other countries of how we are training and molding the youth of our country. Just quickly in Hindi, for Hindi की ज़रूरत है? सरकार ने एनसीसी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो आपको मालूम है खुद भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, और माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, उन्होंने लगातार एनसीसी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को एनसीसी को बॉर्डर एरिया में एक्सपैंड करने की स्कीम की घोषणा की थी। रक्षा मंत्री जी ने एनसीसी के कई प्रोग्राम, मोबाइल ट्रेनिंग ऐप और दूसरे कई प्रोग्राम में बहुत प्रोत्साहन दिया है। इसी श्रृंखला में एक बड़ा कदम जो एनसीसी उठाने जा रही है, एक बड़ा परिवर्तन जो लाने जा रही है एनसीसी, वो 75वें साल के स्वतंत्रता के 75 सालों के सेलिब्रेशंस के उसमें इस वर्ष रिपब्लिक डे कैंप, जो एनसीसी का सबसे महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी है साल भर का, उसमें जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनके पार्टिसिपेशन में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है। अभी तक ये पार्टिसिपेशन वहाँ की होस्ट कंट्री द्वारा उनके कैडेट्स और यूथ भेजे जाते थे। पहली बार ये पार्टिसिपेशन हम एक कंपटीशन द्वारा करेंगे, जिसमें वहाँ हम जो है वहाँ के यूथ से भारत की हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, ग्रोथ, जो न्यू इंडिया के आयाम हैं उनके बारे में उनके ज्ञान के उनसे पूछेंगे। और इससे हमें दो चीज़ें लगती हैं। एक, उनकी भागीदारी एस्पिरेशनल होगी। बहुत सारे लोगों को इस कैंप में इस सिलेक्शन कंपटीशन को जीतकर पार्टिसिपेट करने की इच्छा जागृत होगी। और दूसरा, भारत के बारे में देश विदेशों में काफ़ी इन्फॉर्मेशन का ज्ञान होगा। इस वर्ष हमने दूसरा जो काम किया है कि पहले अभी पिछले साल तक 10 देश इसमें पार्टिसिपेट करते थे। 75वें साल के उपलक्ष्य में इसको संख्या को बढ़ा के 25 देशों का पार्टिसिपेशन है, जो कि दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स को में से हैं। तो हर कॉन्टिनेंट का रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा। विदेश मंत्रालय की और इंडियन एम्बेसीज जो इन देशों में हैं, उनके सहयोग से ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया जाएगा और उसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। जुलाई मास में इस नए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में वहाँ पे जानकारी दी जाएगी। सितंबर मास में इसका सिलेक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा, कंपटीशन को कंप्लीट किया जाएगा,
और अक्टूबर मास में इसके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वो अपने आने की तैयारी कर सकें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कैंप है सारे कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स को ऑब्ज़र्व करके, जैसे पिछले साल भी किया था उसी तरह से इस साल भी करेंगे। इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है और सारे सेफगार्ड्स लिए गए हैं। धन्यवाद। Now request DG NCC to give some more details about the activities of NCC and as well as this particular scheme as well. As mentioned by the Honorable Defence Secretary, I will take on from there. It has been already mentioned that this program is going to be aspirational. This program is going to be for 14 days. It is going to be from the 16th of January till the 29th of January. The cadets who are going to come from all the 25 countries, they will be made to undergo a large number of activities wherein they will be made to interact with very important dignitaries like the Honorable Prime Minister, the Honorable President, as well as the other service chiefs, in order to give them an idea about the country and the culture. They will be taken to places of cultural and tourist interest like Vadodara, Agra, Jaipur, and as far as the activities in Delhi is concerned, they will be made to attend the investiture ceremony by the Honorable Raksha Mantri, the visits to the various houses of the chiefs, as well as interact with the various dignitaries. They will also be given an exposure to the culture of the nation by making them do yoga and to introduce them to the art of Ayurveda. The cadets are expected to come here by the 15th of January, after which they will be put through this program. While they are doing this program, they will also have the opportunity to interact with the cadets of India as well as the other 24 nations. While doing so, it will be an exchange of best practices, ideas, customs, culture, which will really take the level of the youth cooperation and camaraderie that the National Cadet Corps has always been implementing and advocating. The cadets will finally leave the nation on the 30th of January. Thank you. Now I open the floor for questions. सर कुल कितने जो कैडेट हैं या युवा हैं उनको भारत आने का मौका मिलेगा और पूरी क्या प्रक्रिया रहेगी उनके चयन के लिए? You want to answer that? एक देश से करीब 10 से 12 कैडेट्स रहेंगे और उनके साथ 2 फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे। और उनके चयन की प्रक्रिया जैसे बताया गया है, ये पैम्पलेट में उसके फुल डिटेल्स दिए गए हैं। उसका पहली चीज़ तो इसका वहाँ पे जो हम करस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं, वो उसका वहाँ पे लोकल लेवल पे इंतज़ाम करेंगे ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भाग ले सकें। और उसके बाद एक ऑनलाइन कंपटीशन होगा जिसमें बच्चे भाग लेके, और जिसमें ज़्यादातर हमारा आइडिया ये है, अभी उसका प्रश्नावली बनी नहीं है, लेकिन भारत के बारे में वो प्रश्नावली होगी जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा भारत के बारे में जानकारी हो सके। सर मन में यही सवाल था कि बहुत जल्दी अर्ली हो गया, 6 महीना पहले ये सब तैयारी नहीं, बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि जो है इसके लिए फॉरेन कंट्री से एक बार सिलेक्शन हो जाए, फिर बच्चों के वीज़ा और दूसरी सारी चीज़ों के लिए तैयारी करने के लिए, इंतजामात करने के लिए इतने टाइम नॉर्मली लगता है। नॉर्मली भी हम लोग इस समय में इनकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। और जो हमारे बच्चे इंडिया के भी इन कैंप्स में आते हैं वो भी एक सिलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा आते हैं, उनकी भी सिलेक्शन इसी दौरान में हो जाती है। सर हमारे जो इंडिया के कैडेट हैं क्या वो भी बाहर जा रहे हैं वाईपी की तरफ? जाते, बिल्कुल जाते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं।
और अभी तक हमारे बच्चों का तो जो सिस्टम है वो यही है कि हम ही लोग उनको लेके जाते हैं और हम ही लोग सेलेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट की बात की जा रही है एनसीसी के अंदर पूरे देश भर के अंदर इस समय कुल कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और आगे क्या टारगेट रखा गया है? ये बहुत एक महत्वपूर्ण पहल है, एक और पहल है जिसमें एनसीसी ने यूजीसी से बात करके यूजीसी ने अब यूनिवर्सिटीज़ को ये परमिशन दी है कि वो अपने यहाँ एनसीसी को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरह ऑफ़र करें। ये एक बहुत स्वाभाविक विषय है क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह का कोर्स करिकुलम और जितने आवर्स का कोर्स करिकुलम जो एनसीसी की ट्रेनिंग में प्राप्त होता है, तो इसका कोर्स की तरह इसको कंसिडर किया जाना एक लाजमी इशू ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये एक लॉजिकल स्टेप है जो लिया जाना चाहिए। अभी हाल में ही यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा और यूजीसी ने एक परमिशन दी है सब यूनिवर्सिटीज़ को कि आप एनसीसी अपने यहाँ जो भी चाहें उसको एक कोर्स की तरह ऑफ़र कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है पिछले 2-3 महीनों में, एंड आई रिक्वेस्ट डीजी एनसीसी और डिटेल्स दें इसके। लगभग 250 से ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस चीज़ को अपने प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट डीजी एनसीसी टू आल्सो से समथिंग। जैसे कि माननीय डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया है इस एनसीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। एनसीसी का जो प्रशिक्षण होता है उसमें मिलिट्री प्रशिक्षण के साथ साथ सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट, समाज सेवा की एक्टिविटीज कराई जाती है। एनईपी पॉलिसी 2000 के तहत ये जो करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बीच में जो ये सेपरेशन है उसको हटाया जा रहा है और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को एक जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे माना जाएगा। जहां तक हमारी एनसीसी के ट्रेनिंग का सवाल है, ये जो है कोई भी दूसरे सब्जेक्ट को अगर हम कंपेयर किया जाए, जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, तो हम समझते हैं कि एनसीसी का ट्रेनिंग और भी अहमियत है और वो उसको ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट या इलेक्टिव क्रेडिट सब्जेक्ट अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो है लिहाज से उसको माना जाना चाहिए। जैसे कि ऑनरेबल डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने बताया है, अभी तक इस कोविड के दौरान भी जो हमारे स्टेट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स और सारे जो हमारे स्टाफ है, विभिन्न वाइस चांसलर्स के साथ जाके अपना विचार विमर्श किया है, इस सब्जेक्ट के बारे में बताया है और ये अच्छी बात है कि अभी तक 255 कॉलेजेस ने ये मान लिया है और एनसीसी को अडॉप्ट कर लिया है एज अ जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट। लेकिन हमारे देश में जहां पे एनसीसी का प्रशिक्षण किया जा रहा है इसमें 5098 कॉलेजेस हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से हम इस चीज में जुड़े हुए हैं और यूजीसी के हेल्प और एआईसीटी के हेल्प से हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे और ये प्रोसेस ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ये एकेडमिक काउंसिल्स के मीटिंग्स में ये कंसिडर किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि ये नेक्स्ट 3-4 महीने के अंदर ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहेगा और अधिक से अधिक कॉलेज जो है एनसीसी को एज ए जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे अपनाएंगे। लास्ट ईयर कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए और जिस प्रकार से हमने बायो बबल तैयार किया था, 1000 कैडेट्स की पार्टिसिपेशन थी, लेकिन हम एक वेव के थ्रू जाके सेकेंड वेव के थ्रू भी हम आ चुके हैं और जहां पे पार्टिसिपेशन का सवाल है, ये सीनियर कैडेट्स मतलब सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के कैडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे जो कि 18 साल के ऊपर होंगे और हमने इस बार इस प्रकार से सोच विचार किया है कि जो भी कैडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे ये वैक्सीनेटेड होंगे, उनको डबल वैक्सीनेशन दिया गया होगा और इस स्ट्रेंथ जो लास्ट टाइम 1000 स्ट्रेंथ है इससे हम और भी बढ़ाएंगे इस स्ट्रेंथ को, तकरीबन हम इस स्ट्रेंथ को 2000 तक लेके जाएंगे क्योंकि ये जैसे कि ऑनरेबल डिफेंस सेक्रेटरी ने बताया है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट
as far as the youth exchange program of 2022 is concerned, आज़ादी की अमृत महोत्सव के तौर पे, तो यहाँ पे भी हमारा इंडियन कैडेट्स, हमारे जो कैडेट्स एनसीसी कैडेट्स है, ये भारी तादाद में लेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल्स के नजर रखते हुए उस प्रकार से नहीं लेके जाएंगे जो नॉर्मल कंडीशन में होगा, लेकिन लास्ट टाइम से और भी ज्यादा अधिक स्ट्रेंथ इस बार पार्टिसिपेट करें। लास्ट ईयर फॉरेन कैडेट्स का कितना नंबर? लास्ट ईयर कोविड की वजह से फॉरेन कैडेट्स नहीं आ पाए हैं और ना ही हमारे कैडेट्स जा पाए हैं। Not today. Restricted to drones. Mine. So when you say aspirational, so which means whatever the cadets will be selected, they will be sent on our cost, we will be funding them, their travel and all, Yes. number one. And number two, so when you say that 255 colleges they have accepted, agreed to adopt this as elective subject, which is other than 598 colleges. It is 255 out of the 5098 colleges who have adopted it. ये मतलब ये शुरू हुआ है प्रोसेस सिलसिला, और हमारी कोशिश ये है इस चीज़ को और ज़्यादा प्रचलित करें। पिछले 2-3 महीने में 250 कॉलेज करीब आ गए हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है और भी कॉलेज इनको आगे और अडॉप्ट करेंगे। फॉरेन कैडेट्स इस बार कितने होंगे टोटल इसका जो भी? करीब 250 से ज़्यादा, 250 के तकरीबन होंगे, 300 होंगे, सॉरी 300 होंगे। Thank you very much. A small query on this NCC. Now we are into new age, right?